Okay, so chapter 4, quadratic equations. As I was mentioning, we have already seen how to find out if equation is quadratic or not. So that is 1 mark question. Definitely it will come. Maybe you will have 1 question or 2 questions based on this. Okay, Ashi, good evening. Rajvardhan, good evening. So how to find out whether equation is quadratic or not? Definitely you'll get 1 or 2 questions. Pakka. Next, how do you find out the solution to a quadratic equation? So like I mentioned yesterday, there are 4 methods. First is the factorization method. Second, using the identity method. Thirdly is completing the square method. And fourth is using the determinant method. I have explained to you the factorization and splitting the middle term yesterday. And that's a long race. You have to practice on this. There is no end to it, that actually. So we will practice a lot of it, but not today. Today I want to make you just comfortable so that the DPS guys at least can benefit from the class, and then we'll see whether to come back to this, or we come back to the quadratic equation later. Then will come the questions of how to use the determinant to find out the um, solution to a quadratic equation. Now the steps to finding this solution to quadratic equations by factorization is you find out the factors and equate each factor to 0. So each factor will give you some value of the variable. Let's say you get 2 factors, x minus 3 brackets, x minus 5 bracket is equal to 0. So x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3, x minus 5 is equal to 0, x is equal to 5. ये दोनों आ गए. These are called roots of the equation or solution to the equation. ठीक है, यहाँ तक कोई problem नहीं. We have also seen so far what are coefficients of equation and what are coefficients, and then we know that there are roots. That is the solution to the equation, and there is a relationship between them. Sometimes that is also used. So before I go ahead, I just want to ask you guys, any doubts in so far what we have covered? Yeah. Let me ask one by one. Pratham, Satvik, Karthik. Yes, sir. Any doubts so far? No, sir, no doubt. Satvik, doubt? Sir, no doubt. Karthik Sirohi? No doubt. Okay, Bhavya? Ravi? No, sir, no Achintya? doubt. No doubt. Achintya? No, sir, no doubt. Bhavya? No doubt, sir. Okay, ठीक है. Ravi? Kartikeya Mishra? Any doubt so far? Ravi and Kartikeya? Okay, Kartikeya बोल के बताए यार. Ashi, any doubts? No, sir. Okay. So सात्विक से मैंने पूछ ही लिया. Okay, ठीक है. Okay, okay कार्तिक. राइट राइट राइट. ओके, चलो अब आगे चलते. अब घबराने वाली कोई बात नहीं है. अब आपके पास इक्वेशन आएगा, फटाफट फैक्टराइजेशन कर दोगे. लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है. एक आसान तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर. मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, बट मैं बोलूंगा नहीं बिल्कुल भी, और ना मैं रुकूंगा बीच में, बिकॉज मुझे लगता नहीं वो जरूरी है. बट एक बार कर दूंगा तो तुम लोगों को ना थोड़ा दिमाग में डिटर्मिनेंट की वैल्यू समझ में आ जाएगी अच्छे से कि अच्छा इस वजह से ऐसे होता है डिटर्मिनेंट. तो एक्सप्लेन कभी बाद में कर दूंगा, या वीडियो देख लेना थोड़ा स्लो करके. पूरे में फास्ट फास्ट कर रहा हूँ. So this is actually the completing the square, which is not there in this, but determinant निकालने का तरीका यहीं से आता है अपने पास. Okay, so completing the square. Let the given quadratic equation is, okay, see from here now, ax square plus bx plus c is equal to 0. अब मैं तो कुछ कर रहा हूं, सुनते रहना, ठीक है. डाउट होल्ड करके रखना. लेट 2 a b
ओके, लेट ए, और ए भी नहीं यूज कर सकता क्योंकि ए भी दे रखे हैं इधर। ओके, सो लेट P is equal to X and 2PQ is equal to BX. Q is equal to BX upon 2P is equal to BX upon 2, P की वैल्यू X है, 2X, X cancels X. So Q is equal to B upon 2. Now add and subtract. ओके, नहीं, उससे पहले डिवाइड, ये स्टेप पहला स्टेप था ये, उसके बाद नीचे वाला स्टेप होगा, स्टेप 1, दिस इज स्टेप। डिवाइड बाय a, so I'll get x square plus b upon ax plus c upon a is equal to 0. Yeah, b upon x. Okay, now add and subtract b upon 2a whole square. Okay, x square plus bx upon a plus b upon 2a whole square minus b upon 2a whole square plus c upon a is equal to 0. X plus b upon 2a whole square minus b upon 2a whole square, yeah. So b square upon 4a minus c upon a is equal to 0. इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं, इधर b square upon 4a minus c upon a, एलसीएम आ गया 4a, so b square माइनस, अच्छा ये 4a स्क्वायर है ना यार, 4a स्क्वायर क्योंकि b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, सो b स्क्वायर माइनस, अच्छा 4a स्क्वायर हो गया है, b स्क्वायर ये आ गया 4ac. ओके, सो दिस कैन बी रिटन, ये अलग से कर दिया मैंने, एट द रेट का साइन लगा रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड यहां पे सॉल्व हुआ है. ओके, नाउ x प्लस बी अपॉन 2a माइनस, ये होल स्क्वायर है और ये है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं. आई कैन राइट दिस एज b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर. ओके, सो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बट दिख रहा है ना, बट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q, p माइनस q, ये p ये q, सो x प्लस b अपॉन 2a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस b अपॉन 2a माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है. ओके, इधर लेके आ रहा हूं इसको, स्पेस मैनेजमेंट. सो आई कैन राइट x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, उधर लेके चला जाऊंगा इसको, ये प्लस और माइनस है, तो एक बार ये प्लस होता है, एक बार माइनस होता है. एक स्टेप मैं स्किप कर दिया अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a.
सो आई कैन से x इज इक्वल टू, ये b उधर चला जाएगा देखो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी 2 है इसका भी 2 है, तो 2a कॉमन ले लिया नीचे एलसीएम. This is called okay, this is the solution to the equation. This is the solution to the equation so far. Okay, I'm taking a pic of this, and this is what I have done today. Was not required to be done. I will now start from here, but still to understand all this कि कहां से आई x की वैल्यू घूम घाम के, you will see the video, you will understand. If there is any doubt, ask me tomorrow. There is nothing that you don't know. ये सारा सारा आपको आता है, ये सब नॉर्मल अलजेब्रा है, बट क्योंकि नंबर थोड़े बड़े बड़े हो सकता है तो भी लग रहा हो यार ये क्या आ गया, कहां से आ गया इतना सारा, तो वीडियो देख लेना, बाद में आराम से आ जाएगा. आज टाइम नहीं है, जो भी डाउट होंगे मंडे को मैं क्लियर कर दूंगा इसके. बट आई एम टेकिंग ए पिक ऑफ दिस एंड देन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके दोस्तों, अब देखो बिफोर I rub it off completely, इसको मैं नीचे से उठा के ऊपर लेके आ रहा हूं. So now you can find out the value of x. X is equal to minus b plus minus b square minus 4ac अपॉन 2a. ये x की दो वैल्यू आएंगे, कैसे, एक इसको प्लस मान के एक दूसरे को माइनस मान के. Now before finding the solution like this, there is something we can just learn here and that will be useful to us further in this chapter. B square minus 4ac is called determinant. Why is it called determinant? Because it determines, Kartike, it determines, what does it determine? Nature of roots. Nature of roots. How does it do it? Let us see. See, this is important. This is very, very important. But before I go ahead, I want to ask a question to Achintya. Achintya, does this expression has any solution or? No, sir. Okay. This is an imaginary number. It is not a real number. Because कोई real number ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर -9 हो. म्यूट होना अचिंत्य. -3 का भी स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो 9 होता है. -9 नाम का कोई नंबर नहीं है. सर It is an imaginary number. Imaginary number. Okay, it is a imaginary number. ठीक है, अचिंत्य मैं म्यूट कर रहा हूं आपको. ओके, सो इससे हमें कुछ चीजें मिलने वाली. देखो दोस्तों, एक बात बताओ, x की वैल्यू है -b अपॉन a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. अंतरिक्ष, एक बात बताओ मुझे. यस सर. ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाए 0, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, सर सेम सोल्यूशन होगा सर. तो क्या होगा, x का एक ही सोल्यूशन आएगा, माइनस बी अपॉन ए. क्योंकि प्लस माइनस 0 होएगा कोई फायदा नहीं. 0 प्लस करो माइनस करो कुछ नहीं होता. तो x का एक सोल्यूशन आ जाएगा. सर एक और चीज बता दीजिए सर, जो ग्राफ में जब ये जो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकलता है सर, ग्राफ में पैराबोले और अलग अलग शेप्स कैसे बनती है? वो बाद, वो चैप्टर 2 का हिस्सा था, मैं बता दूंगा बाद में. एक्चुअली क्या होगा, जब सोल्यूशन निकालते हैं ना तो सोल्यूशन ऐसे आते हैं, सोल्यूशन ऐसे आते हैं कि एक -3 आएगा एक +3 आएगा. तो आप ग्राफ के ऊपर x की वैल्यू तो वही रहेगी, उसी वैल्यू के लिए आपको एक y3 -3 मिलेगा और एक +3 मिलेगा. तो आपका ग्राफ ऐसे करके जाएगा, एक बार +3 पे से गुजरेगा, एक बार -3 से गुजरेगा, जब हम सॉल्व करते हैं इसको. ये चक्कर है. ओके सर. नाउ ओके दोस्तों, तो दो कंडीशन तो मैं तुमसे डिस्कस कर ली. एक तो ये इमेजिनरी नंबर वाला
let us call it situation number 3, sit 3. This is when this is equal to, this is called sit 2. So depending upon b square minus 4ac, if it is positive, roots are real and different. Roots are real and different. So if positive, roots are real. This is situation number 1. Situation 2. This is 0. That means root are real and same, equal. यानी x की 2 वैल्यू होंगी, x is equal to 2 and x is equal to 2. वो कैसे केस में होता है? देखो ऐसे केस में होता है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू, इसके फैक्टर बनते हैं x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0. x की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड 2, दो, x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन. एक्चुअली बस इतना. ये कब होगा? जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा. एंड सिचुएशन 3 इज दिस इज नेगेटिव. दैट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी, नहीं होते रूट, नो रूट. भव्या समझ में आ गई मेरी बात? ये 3 सिचुएशन. Yes, sir. Now question comes, राजवर्धन, question comes. राजवर्धन, ये पॉइंटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने से जवाब देना है इसका. Yes, sir. ए, बी और सी की वैल्यू कहां से आएगी हमारे पास? सर वो उससे सर हमने जो क्यूबिक का फॉर्मूला किया था अभी. क्यूबिक का नहीं, आराम से रिलैक्स होकर बोल भाई. Yes, एबीसी sir. की वैल्यू कहां से आएगी? क्या एबीसी है क्या? सर हमने वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बाद से वो क्यूब से उसका नाम मैं भूल गया. सर हमने जब ए की एक्स की वैल्यू निकालने के लिए. No, एक मिनट, होल्ड. Okay, let me ask, give a chance to other people also. Right, कार्तिक सिरोही, एबीसी की वैल्यू कहां से आएगी हमारे पास यार? कहां ढूंढूंगा एबीसी की वैल्यू? सर अल्फा बीटा से. अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा सर वही एबीसी वाला. यस सर. ओके, नहीं. लेट मी जस्ट चेक. देखना कहां तक बात जा रही है मेरी. सात्विक बताएं, कहां से मिलेगी एबीसी की वैल्यू? कहां ढूंढूं एबीसी को जाके? सर पता नहीं सर. प्रथम कहां से आएंगे एबीसी? सर वो वर्ड आ नहीं रहा है सर, पता नहीं कैसे, मतलब प्रथम कहां से आएगा एबीसी यार? सर इक्वेशन से दे रखा होगा ना. कार्तिक है, मुझे इक्वेशन दे दी ऐसी. देखो मुझे ऐसी इक्वेशन दे दी, 5 माइनस 6x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर. ऐसी इक्वेशन दे दी मेरे को. ओके, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा ये क्या बकवास है यार. स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके देना चाहिए था तुम लोगों को. चलो तुमने नहीं दिया, मैं कर लेता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा ओके, 8x स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओ, प्लस 6x, 5 जाएगा उधर, माइनस का हो जाएगा. अब मैं फ्लिप कर देता हूं, सबको पता है इक्वेशन को हम फ्लिप कर सकते हैं, टक, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. तो 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सात्विक, ओके सो फार? कार्तिक सिरोही, यस सर. नो प्रॉब्लम सो फार इन दिस इक्वेशन? सर नो प्रॉब्लम. Okay, now compare with standard form. ax square plus bx plus c is equal to 0. a is equal to 8, b is equal to 6, c is equal to minus 5. Satvik, no problem? Rajvardhan, no problem? Kartik, no problem? Kartik, sir?
अचिंत सर एबीसी की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल ली हमने। यहाँ से निकालनी, कोफिशिएंट से। शेरा शेरा है ये सब बॉडीगार्ड है सलमान खान के। शेरा यानी वेरिएबल के साथ जो चिपका रहता है हमेशा, प्रोटेक्शन करता है उसकी। प्रोटेक्शन तो करता कि नहीं करता है तो मैं ट्रिक बना देता हूँ इसके अपने मन से। तो शेरा है ये। ओके, अभी चेक कर लो यार पहले सॉल्यूशन। अभी कई बार हम कहते बहुत मेहनत कर लेते हैं यार, इक्वेशन पूरी करके देखें निकलेगा नहीं निकलेगा, वो चेक तो करूँ सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे, देख लेता हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा यार, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू माइनस 5, तो आ गया 36। अब ये माइनस और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया। 4 5 जा 20 160, दिस इज 4 5 जा 20 160, सो 196 आ गया। ये तो पॉजिटिव नंबर है भैया, अच्छे से इसके रूट निकलेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अदरवाइज इफ यू रिमेंबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब रूट निकालू कैसे, चेक तो कर लिया रूट आएंगे। रूट है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2a। रवि ध्यान देना, बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है। ओके भाई लिख दो वैल्यू, पहले लिखो माइनस बी माइनस 6, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, प्लस स्क्वायर रूट 196 अपॉन 2a, 2 इंटू 8 कितना है माइनस 6। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आती है, 196 स्क्वायर रूट 14 अपॉन 16, तो यह आएगा माइनस 8 अपॉन सॉरी प्लस 8 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। एक रूट तो आ गया दोस्तों, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दूसरा भी निकाल लेता हूं, इस बार इसको प्लस नहीं करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, तो यहां आएगा माइनस 6 माइनस 14 अपॉन 16, तो माइनस 20 अपॉन 16, 4 5 जा 4 4 जा माइनस 5 अपॉन 4, x इज इक्वल टू माइनस 5। कितना आसान है, कितना आसान है इस तरीके से निकालना यार। बताओ अब डाउट पूछ सकते हो तुम लोग। सर माइनस बी प्लस माइनस वाले उस मेथड से करना है सर, या फिर हम हाँ अब करेंगे। अब जब तुम्हें इसी से कराऊंगा ना क्वेश्चन, क्योंकि ये बोर्ड में है, इस पार्ट ऑफ द बोर्ड। बोर्ड में उन्होंने ये बोला है हम आपको ऐसे देंगे, हम आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे कि आपको इमेजिनरी नॉट इन द सिलेबस, बट बाकी सिचुएशन 1 और 2 दोनों है, सिचुएशन 3 नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसको इसी मेथड से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें प्रैक्टिस देना चाह रहा हूँ कि तुम इक्वेशन बनाना सीख लो, इक्वेशन बनाना सीख लो। आई एम कमिंग बैक टू द सेम एक्सरसाइज व्हिच वी डिड यस्टरडे। वी आर सपोज्ड टू डू इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट अदर मेथड, दैट इज जो क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जगह आज दूसरे मेथड से कर लेते हैं, ताकि तुम लोग मंडे के लिए प्रिपेयर हो जाए इंजीनियरिंग का एग्जाम। पहले मुझे बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत है? मैंने एक उल्टी पुल्टी क्वेश्चन से शुरू की थी बात, तो मैंने इक्वेशन क्या दी तुम्हें, क्या अजीब सी इक्वेशन दी थी मैंने ऐसे, एक्स स्क्वायर यहाँ पड़ा हुआ है, 6 इधर पड़ा हुआ है, 5 इधर पड़ा हुआ है। रवि कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, yes, तो सबको इकट्ठा करना तुम्हारी ड्यूटी है, इस फॉर्म में लेके आना तुम्हारी ड्यूटी है, और उसके बाद स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दो, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार चेक कर लो। पहले ये वाला स्टेप कर लो, काम तो बाद में आ ही जाएगा, फालतू तो गई नहीं मेहनत, यहाँ काम आ गया मेरे। चेक कर लो भाई पॉजिटिव है कि जीरो है क्या नेगेटिव है। नेगेटिव तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही बोल देना इट डज नॉट हैव ए रियल सोल्यूशन, इट डज नॉट हैव रियल रूट्स, नहीं बोल देना। अगर ये माइनस होगा तो प्लस होगा तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो, और I think it has, you guys have understood. I can see थोड़ा तो है नहीं, डिफिकल्ट नहीं, आसान है this particular method. मैं I am just reposting the exercise. Let's do that because मेरे को तुम्हें एक्सपीरियंस देना है how to make equations. Yes, ये थी ना cottage industry. All right, let me present it. सर वीडियो में कभी कभार क्या होता है, आप प्रेजेंट करते हो और फिर जब आप एक्सप्लेन करने जाते हो तो फिर सर एक्सप्लेन वाली स्क्रीन दिखती नहीं है, छोटी सी दिखती है। छोटी, अगर मैं प्रेजेंट करता हूँ ना तभी होता है ना दिक्कत। यस सर। तो इसीलिए बोलता हूँ जब मैं बोर्ड पे जाऊँ ना प्रेजेंट, मुझे याद दिलाएगा प्रेजेंटेशन हटा दो,
प्रेजेंटेशन तो जब समझा रहा हूँ मैं उधर ही हो जाएगा, मेरे को याद दिला दिया अगर तुम लोग, वही प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए प्रेजेंटेशन मिनिमम रखूंगा। अभी ग्रुप में डाल दिया है तो फट से अपने उसमें देख लो, व्हाट्सएप में देख लो और फटाफट कर लो। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं किया। यस, ओके गाइस, जस्ट मेरे को ना इक्वेशन बना के दिखा दो, बाकी मैं सॉल्यूशन तो मैं करवा दूंगा। ये पहली वाली क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको करके दिखाओ मेरे को जल्दी। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर हुज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कर सकते हैं इसको। इक्वेशन बनाना है सिर्फ, अभी सॉल्यूशन मत करना। चाहे जिसका इक्वेशन हो जाता है लिख देना चैट बॉक्स में, डन। मैं लाइन खींच रहा हूँ। फिफ्थ वाला है, थर्ड किया कहा हमने, कर लिया, कर भी लिया तो इस मेथड से नहीं किया होगा। मेरे को दिखाओ एक बार फटाफट सर इक्वेशन क्वेश्चन नहीं, डी 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 इक्वेशन तुम लोगों ने बनानी। क्वेश्चन नंबर 3 डन लिखना है, अगर हो गया तो इक्वेशन बन गई तो। कल इसका मैं तुम लोगों को रिवीजन कराऊंगा, फिर सर को बोलूंगा करीब 1.5 आवर्स की क्लास रखेंगे, जब भी तुम बोलोगे तभी रखवा देंगे। सुबह रखनी सुबह, शाम को रखनी शाम को। ओके, क्वेश्चन, सो दिस इज एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वी डूइंग। कहता है नंबर्स, दो नंबर है, उनका सम इज 27 एंड प्रोडक्ट is equal to 182. Right guys, I'm stopping the presentation now. Give me the सर done डी इसका हो निकालना गया। है मतलब, हाँ, सर डी निकालना है मतलब। किसने बोला डी निकालना? सर आपने भी बोला ना कि हमें कुछ निकालना है। नहीं ऐसे मैंने कहा हमें नंबर निकालने हैं, कौन कौन से नंबर है। ओके, पोस्ट योर इक्वेशन, बट ग्रुप में डालो, इसमें डालो जल्दी। अरे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगी थी प्रथम, ये तो कोई बच्चा भी कर देगा। और ये 2 वेरिएबल वाला चैप्टर नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल का चैप्टर है। तो स्टैंडर्ड में लाना है ना इसको। हाँ स्टैंडर्ड में पॉसिबल, स्टैंडर्ड में बेस्ट है था देना इक्वेशन। किसी से नहीं हुआ भाई, ऐसा मत करो यार, इजी क्वेश्चन है। अंतरिक्ष तुमसे नहीं हो रहा? सर एक मिनट सर, आ गया सर, आ गया। अंतरिक्ष भाई, तुम तो सर, आ सेलिब्रेशन गया। मोड में चल रहे हो कि सारा हो गया, क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे फिर? Yeah guys, give me the question. Okay, should I give you a hint? नहीं सर, मेरे को मिल गया। Okay, all those people who want a hint, write hint in the chat box. I'll give a hint. सर मैंने चैट बॉक्स में भेज दी। भेज दिया? ओके, हिंट मैं चैट बॉक्स में इक्वेशन भेज दी सात्विक। ओके सर मैंने डाल दी सर, आपके वो डॉट डॉट मतलब लाइंस के पहले वो ओके, ओके मैं देख रहा हूँ कल रात की क्लास काफी लोगों ने देख ली है, ठीक है, दैट्स गुड। सर मैंने क्वेश्चन डाल दी दोनों बन रही है, हाँ। ऑलराइट दोस्तों, एक चीज और देखना, मैंने एक फॉर्मूला तुम लोगों को शायद से कब बताया, चैप्टर 2 में बताया होगा पक्का। देखो, एक फॉर्मूला होता है, if sum and product are given to you in a quadratic equation na, so the equation will be x square, you can take x square, b square, p square, q square, कुछ भी ले सकते हो। let me take p square so that your mind is not stuck on p square minus sum p plus product is equal to 0। सात्विक ने जो फॉर्मूला यूज किया है वो ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इस फॉर्मूले से तो बता ही दूंगा, क्या देखना वही आएगा, हमारी इक्वेशन वही इक्वेशन आएगी। अब देखो मेरे पास दो नंबर है यार, सो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सो सेकंड नंबर क्या होगा अंतरिक्ष? अंतरिक्ष कहां चले गए तुम भैया?
Achintya, what will be the second number now? अच्छा, हिंट ये है दोनों नंबर का टोटल 27 है, एक नंबर Sir, x है 27 सर may I minus x. now? 27। हाँ, मैं आई क्या तुम्ही से पूछ रहा हूँ इतनी देर से। हाँ सर सर x सर 27 minus x into x is equal to 182. So x square minus 27x minus x square is equal बस to बस 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 अचिंता रुको, होल्ड योर राजधानी एक्सप्रेस। थांबा थांबा थांबा। आशी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, और जो आगे अचिंत्य बता रहे हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सर मैंने भी बिल्कुल दिया सही है। बात है। 27, हाँ तुमने दे दिया, तुमने पहले दे दिया। तो पहला नंबर अगर x है, अंतरिक्ष भार्गव कुछ कुछ सांस आई कि नहीं आई अभी, ये शौक में हो अभी भी? कहाँ चला गया अंतरिक्ष? ओ भैया, अरे आवाज क्यों बंद हो गई? फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर इज 27 माइनस x, और हमें बोला दोनों का प्रोडक्ट 182 है। x इंटू 27 माइनस एक्स 182। रवि, ये बात समझ में आ गई? यस सर। सात्विक, भव्या, कार्तिक सिरोही, कार्तिकेय मिश्रा, राजवर्धन, यस सर। सार्थक, सार्थक Yes, तो आ sir. जाए ही नहीं, Yes, तो sir. समझ आ रहा हो तो। अब तो भैया खोल दो इसको। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 182। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ प्लस करने के लिए, तो 0 इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। फ्लिप कर दो इक्वेशन, फ्लिप करते ही आ गया एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर इसमें माइनस, ऐसे नहीं करेंगे कि x इस इक्वेशन को उधर ले जाएंगे, जीरो को सर राइट हैंड साइड ले आएंगे किसको? सर। इस जीरो सर ऐसे नहीं लिखेंगे इस इक्वेशन को, मैंने पिछली बार करा था एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। हाँ तो अरे भाई, पहले तो बेसिक चीज तो ये है ना कि एक्स स्क्वायर को उधर ले जा रहे हो तुम, तो इधर 0 रह जाएगा ना, फिर फ्लिप कर देंगे, फिर फ्लिप कर देंगे। यस एक बार पहले ऐसे लिख दो, अगले स्टेप में फ्लिप कर दो, ऐसे फ्लिप कर दो, ठीक है? यस सर। हाँ एक बार में, लेकिन अब नहीं तो ऐसे करोगे ना गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। आप बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड चलो अपने, एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले गया, 27 को एक्स ले गया, यहाँ 0 बच गया। अब अगले स्टेप में फ्लिप कर दो, जैसे मैंने कर दिया था अभी। नाउ मैंने क्या बोला था तुम्हें, इक्वेशन हमारी क्या आएगी? पी स्क्वायर माइनस सम कितना है? 27x प्लस प्रोडक्ट, यही आई इक्वेशन, घूम फिर के वही आ गई इक्वेशन। अगर तुम्हें पता है तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, एज वी नो द इक्वेशन विल बी पी स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन को आई वांट यू गाइस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। पता करो भाई। I solved this mentally. You guys solve it using determinant. अरे अंतरिक्ष, हेलो, सॉल्व करो भाई यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड।
डन कर दिया, डन कर दो जिस चीज का हो गया। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। प्रथम क्या बात है, हो नहीं रहा। सर मैंने उसकी फ्लोरेसी की इक्वेशन सॉल्व कर ली। सर मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। एक्स और वाई नहीं है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर एक्स की वैल्यू आ गई सर, मेरे 2 नंबर्स आ गए सर, 2 नंबर्स तो आ गए। डन डन लिखो। सर वो गलती से बोल रहा हूँ सर। सर डाल दे नंबर। नहीं नहीं, अभी नहीं, तब से प्रथम का है, बाकी का डन का वेट कर रहा हूँ मैं भाई। डन हो गया। राजवर्धन डन लिख दो, आशीष ने लिख दिया, बाकी लोग डन डन लिख दो। अंतरिक्ष तुम जाके मुंह पे पानी मार के आ जाओ भैया, नहीं तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं होंगे तुमसे। यस सर। जाओ पानी पियो, थोड़ा सा पानी मुंह पे मार के आओ। 3 घंटे साल सुबह फुटबॉल खेलोगे तो यही हाल होगा। हाँ जी, सिर्फ 2 यार, डन करो भाई, बाकी लोग भी। सात्विक, रवि क्या कर रहा है? भव्या, अबे यार सर मैं कर चुका सर। सात्विक ने तो कर दिया, ठीक है, डन लिख दिया। भव्या की बात कर रहा हूं मैं, भव्या की, रवि की, कार्तिक सिरोही की, कार्तिकेय मिश्रा की। यस गाइस, यस 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 यस। आशी का आ गया, ठीक है। प्रथम, आशी, राजवर्धन, सात्विक, भव्या। तो आई एम वेटिंग फॉर कार्तिक सिरोही, कार्तिकेय मिश्रा। सर मैंने गलती से भेज दिया वो। सारी गलती से तुमसे अपने पास कंट्रोल नहीं होता। सर मैं शिफ्ट एंटर कर रहा ओके था। गाइस, पोस्ट आंसर एवरीवन। ओके, सात्विक करेक्ट, प्रथम करेक्ट, आशिक करेक्ट, राजवर्धन करेक्ट। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क मी सर ये कैसे हुआ? ओए भैया, रवि, राजवर्धन तो आ गया सॉरी। रवि एक बात बता, मुझे सिर्फ इतना बात बता दे, इस वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है भाई? ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 27 27 और minus -27 27 एंड सी इक्वल टू 18 18। 182 सॉरी सर वो बोर्ड क्लियर नहीं है थोड़ा। अच्छा, तो तू अब टाइम पास ही कर रहा है इसका मतलब तब से? नहीं सर। तो ये इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम? डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये नहीं होगा क्या? छोटे बच्चे कर लेंगे, 6th वाले कर लेंगे इसको। 27 का स्क्वायर करो, 4 इंटू 182। क्यों नहीं हो रहा? सर इसको जो आपने अभी लिखा है इसको कैलकुलेट करना है। हाँ, इसको कैलकुलेट करना है बस। और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ लिख दो सर x इक्वल टू इसमें एंटर भी माइनस बी प्लस ये स्क्वायर रूट डी कर दो इधर। डी का जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसकी वैल्यू रख के 2a कर दो बस। हाँ जी, somebody was saying something. सर इसमें एंटर भी क्या बोल रहे हो चिंता? कांट मेक आउट व्हाट यू सेइंग। सर आई वाज सेइंग इफ आई मे एंटर। अच्छा, वेट करना 1 मिनट। हाँ रवि, यू अंडरस्टूड और नॉट? यस सर, जस्ट कैलकुलेटिंग इट राइट नाउ। बस वैल्यू रखनी है वहां पे और कुछ नहीं करना है। स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। या अचिंत्या? यस सर बहुत सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हो जाएगा सर। पहले नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में दादा, अगर एग्जाम में उन्होंने बोला यूज द डिटरमिनेंट मेथड, देन व्हाट यू विल डू? यू विल स्टिल डू विद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अगर ऑप्शन दिया है आपको, दिया होगा तब तो सर वैसे
ऑप्शन दिया है तो मैं तो कहता हूँ ये आसान है। छोटे बच्चों को डर लगता है यार मैथ से, छोटे बच्चों की इतनी नो बड़ी सर, बड़ी लंबी लंबी ये वाली एक्सरसाइज तो सर पूरी उसी फॉर्मूले से मैंने कर अरे ली। मैं यार बच्चों वाली बात कर रहे हो चिंता तुम। आई क्लैरिफाइड इट इन द फर्स्ट टाइम ओनली दैट वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर प्रैक्टिस। हाँ भाई अचिंत्य, सॉरी प्रथम। सर हम कर तो सकते हैं ना स्प्लिटिंग नंबर? कर सकते हो यार, एग्जाम में अगर तुम्हें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है ना तब तुम कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें। लेकिन अगर सर आप उन्होंने एक बोल बार दिया इस वाले से करके दिखा दीजिए। किससे? ये माइनस बी प्लस माइनस इस अच्छे से करके दिखा दूं, तुम लोगों ने वैसे किया क्या? ओके, सो Yes, लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 27 स्क्वायर। या सर अगर 27 हम b के वैल्यू -27 जगह हमें 27 गिवन होती तो सर हमारा डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आ जाता। कहाँ दिया? आता तब आता तब आता ना, अब थोड़ी आया है। अब तो अलग अलग है दोनों रूट। यस सर। तो दिया है नहीं ना, वो तो हम फाइंड आउट करना भी। ओके, तो 27 into 27, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 4, 189 एंड ये होगा 54। तो आ जाएगा 9 12 कैरी 1 729। मुझे याद है स्क्वायर, लेकिन जल्दीबाजी में कई बार नहीं याद आता। ओके, सो दिस, so what do I have here? B square minus 4 is equal to 729 minus, ये देख लो 4 2 जा 8, 2 कैरी 3 728, 1 आ गया। डिटरमिनेंट कितना आया? d की वैल्यू क्या आई? 1। सो x इज इक्वल टू माइनस b। b कितना है मेरा? 27। माइनस माइनस 27 प्लस 1 अपॉन 2। सो दैट इज टू से माइनस 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 प्लस हो गया, तो 27 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हुआ? 14। x इज इक्वल टू 14। दूसरी बार क्या करूंगा? माइनस माइनस 27 माइनस 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 अपॉन 2, 26 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13। क्या प्रॉब्लम थी? ये इजी है, तुम लोगों को ना स्क्वायर रूट का साइन देखते तुम लोगों को चक्कर आने लगता है, ये क्या है इतना बड़ा? कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। ऑल राइट, लेट अस नाउ लेट मी टेक यू टू द प्रॉपर डिटरमिनेंट वाला मेथड के ही ले चलते एक्सरसाइज कराने। भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो रहने दो, बैंड बजाएगा। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द नेचर रिजल्ट टू पॉसिबल। अच्छा ठीक है, ये वाली इक्वेशन में एक्सरसाइज कराते हैं तो दोनों काम होंगे अपने। डिटरमिनेंट का तुम्हें वो भी आएगा, मेथड भी आ जाएगा, और साथ में रूट्स निकालना भी आ जाएगा, किस तरह के रूट्स। वेट करो एक मिनट। ओके चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ सब लोग। Right, guys. See what is saying. Find the nature of the root the following, and if the root is real, find them. ठीक है, तो दोनों काम अपने हो जाएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, तुम लोग नोट कर लो फटाफट। I'll put it on the board now, and then remove the presentation. I'm putting the formula on this thing on the board, but you have to remember this very easy formula, not a difficult one at all. Exercise 4.4. So x is equal to minus b प्लस माइनस डिटरमिनेंट अपॉन 2a, कितना ही बस, और d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 4ac।
ठीक है जी, ओके राइट। फर्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन 1 says 2x square minus 3x plus 5, 2x सर square नहीं होगा सर, इसका नो रियल रूट्स। ओके इक्वल टू, बाय डी बताओ मेरे को, डी की वैल्यू क्या है, क्या है, गिव मी द डी। Chat box, I am sending the line. All those who have done the value of d, write d, 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 d की d लिखना है। अरे वैल्यू लिख दी, चलो कोई नहीं। हाँ भैया, बाकी लोग बताओ क्या है d की वैल्यू। डन 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 लिखो, डन डन, सब लोग डन लिखो, जिसका हो गया। Okay, put the place, post your answer. I think किसी का तो एक का गलत है, कुछ -31 कह रहा है, तो -32। अचिंत्य, अचिंत्य चेक करना एक बार आंसर। रवि, कोई प्रॉब्लम आ रही है डी निकालने में? नहीं सर, अभी जस्ट निकाल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ एक बार, ऑफिस एक बार में तो नहीं हुआ। देखो देखो इधर देखो रवि भैया, a is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to 5. So what is the value of b square minus 4ac? d is equal to b square क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर -4 into a है 2, c है 5, तो 9 minus 5 to 10, 9 minus 40, तो आएगा -31। ये 32 किसने लिखा भाई? सर राजवर्धन ने। सर इसका मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, ये तो लेस देन 1 है ना, लेस देन 0 भाई, ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, नो रियल रूट्स, नो नो। सर अच्छा सर, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब होता है कि ऐसे जैसे पिछले वाले में आया था ना, 13 और 14 दोनों रूट है, दोनों अलग अलग हैं और साथ में इक्वल नहीं है। क्यों था? हमारा डी 0 नहीं था, हमारा डी 1 था पिछली बार, पिछले क्वेश्चन में डी 1 था। तो जब भी डी मोर देन 0 आएगा तो इट विल बी अ रियल डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग, एक जैसे नहीं होंगे। मतलब ये वाला क्वेश्चन तो सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होता है। 2x कर लो, square लेकिन minus उसने लिखा हुआ है ना, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तो बेटर है कि तुम पहले रियल रूट फाइंड आउट करके देखो। डी आ गया, अगर डी मिल ही गया यार तो फिर क्यों मेहनत करनी है, फिर तो डी की वैल्यू रखो, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, हो गया काम। सर d -31 आ रहा है, लेकिन सर इस नहीं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं नहीं, यू कांट फाइंड द आंसर। तुम्हें लगता है कि तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते, चैलेंज है। स्प्लिट तो हो जाएगा वो ये -5 और प्लस। अचिंत्य नहीं होगा, इफ यू कैन डू इट सेंड इट टू मी, आई विल सैल्यूट यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, इट नॉट पॉसिबल, यू कैन ट्राई टू स्प्लिट, बट स्प्लिट करने का मतलब क्या है, जब क्वेश्चन ही नहीं हो रहा तो क्वेश्चन भी तो होना चाहिए ना पूरा। राइट गाइस, रवि भाई, रवि भैया कैसी हालत है तुम्हारी अभी? सर सेकंड क्वेश्चन करना है। पहले से बेहतर लग रहा है? अब नहीं कर रहे, पहले से अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है अभी? रवि, भव्या, कार्तिक, सिरोही, सात्विक, आशी भाई, यस सर। क्या यू फीलिंग बेटर नाउ? दोनों मेथड सिखा दिए, दोनों वीडियो तुम्हारे पास अवेलेबल है, इनको देखना, और कल की क्लास से पहले जब कल की क्लास में रिवीजन होगा, सर रिवीजन कराएंगे, प्लीज गो थ्रू बोथ द वीडियोस, डू क्वेश्चंस, एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स आस्क। ओके, ऑल द बेस्ट टू अचिंत्य, राजवर्धन एंड अंतरिक्ष। I will meet you only on Monday. Monday Yes, we can start this chapter, continue this chapter, or we can start with nationalism in Europe. Both options are there with you. I'll ask you that I'm telling. Right, oh guys. See you on Monday. Have a nice weekend. Work hard. Score well. Bye sir, thank you sir. Bye bye. Bye bye guys. बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Bye 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 bye.